یتھے کۭژاہ بِلہٕ کِہیٖنۍ جاونہٕ تِم کَڑان ہار بس کھٮ۪وان تِم کھٮ۪وان ہار یہِ گژھِ تحقیٖقات گژھُن یِم کھیٚیہِ أمی ٹھیکہٕ دَرن میٹھو شیٹھو تِم تھٲے بٕتھِ میٖٹھ تِمے چھِ آیہِ ٹھیکہٕ دَرن کھیٚیہِ یہِ مۄکلے آیہِ یہ تھوک کہین نہیں کھول در بدر کی وجہ سے یا پولوشن کی وجہ سے اس کا ندر ختم ہو گیا. اچھا اب اس کی کاشت کی جا سکتی ہے دوبارہ؟ ہاں بالکل اگر چاہیں گے گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتا ہے. بیٹا کہاں رہتے ہیں آپ؟ بنگلہ دیش. اچھا بنگلہ دیش میں آئے کہاں سے؟ سوپور سے. گاڑی کا کوئی یہاں پہ؟ اچھا روڈ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے گاڑی نہیں ہے. لوگ یا جو ہمارے یہاں کے لوگ مطلب چاہے سری نگر کے جو بھی مطلب چاہے جہلم کے بینک پہ رہتے ہیں چاہے ولر کے بینک پہ رہتا ہے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ گورنمنٹ سے زیادہ انہی کا دوش ہے کہ ہمارا روزی روٹی اسی ولور میں ہے چاہے فشر مین ہو چاہے سنگاڑی والے ہیں جتنے بھی مجھے لگتا ہے یہ بہت ایک مطلب ذریعہ ہے روزگار کا خاص کر جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کا بہت ایک بڑا ذریعہ تھا. اب کوئی میسج سرکار کے لیے؟ ہاں یہ مجھے ہمیں روڈ چاہیے بس روڈ چاہیے ہاں سر اور کچھ نہیں چاہیے. 72 کی بات ہے یہ 71 میں آزاد ہو گیا بنگلہ دیش تو 72 میں یہی اس کا نام پڑ گیا بنگلہ دیش. بالکل سر تب سے اس کو بنگلہ دیشی بول رہے ہیں. چلیے سنا والا ڈار زری من ہاں مجھے سچ واٹ لاب واٹ لاب واٹ لاب واٹ لاب وچھا گوس ون روڈ کیا بیمار چھو کرو کیا گھس کت گو یتھ واتان کہین یتھ سہ کڑان بل تو ژلان کران نہ کہین یتھ سہلاب کھسان یتھ سہلاب ہوت زیادہ سہلاب یتھ گاڑی پکان کہین سنا والا ڈار زری مزہ گو واریاہ کال یت پہ ماجہِ زاس تم برونٹ تہد باب صٲب تمس کیا ناو؟ رمضان ڈار. نہ سہ زری مزے روزان زری مز مول لگ بھگ بہٕ 40 تام اہن بہٕ 40 یاد چانہِ حساب 40 40 آ 40 ورین کیا وچھو ولرس مز یتھ یہ تباہی یروین اتھ یروین آب وچھ ندٕرۍ ٲسۍ گاڈٕ آسہٕ دُمب ٲس واریاہ حساب اوس جاے ٲس یا اے شمار سُہ مۄکلیو اتھ کٔرٕکھ یروٕنۍ آوٕے یتھ کٔرٕکھ یروٕنۍ آوٕے گٲڑۍ ٲسِو تُہۍ گٲڑۍ ٲسۍ سُہ تہِ تِم تہِ گٔے تباہ تِم گٔے بٹھِ ہوٚکھۍ تِم گٔے بٹھِ گاڑِ تہِ ٲسِو تُہۍ کھالان گاڑِ تہِ آسان گاڑِ ویٚچھِ تہِ تہٕ نِچ تہِ گاڑٮ۪ن کیٛاہ گوٚو گاڑٮ۪ن گوٚو تِمن گٔے آب کم پتہٕ گٔے تِم غٲبٕے ییٚلہِ آبٕے اوس اوترٕ پٮ۪ٹھ لٔج کم یہوے سیر 2 سیر بس یہِ چھِ لگان دۄہس دۄہس گاڑِ چھا یتھ ممژٕ کِنہٕ گاڑِ چھِ وُنہِ یتھ وُنہِ چھِ زنٛدٕ وُنہِ چھِ گاڑِ ووٚت چھِ مگر یِم چھِ بیٚہوان ناگن منٛز سارنٕے جاین نَدٕرِ وَدٕرِ چھا نظر نہٕ کینٛہہ تِم ٲسۍ گٔلۍ تِم گٔے أکہِ چھُنہ سُہ آب بٕتھِ چھِ گٲڑۍ منٛز یا یتھ سپداے کٲشِر پٲٹھۍ کھاد ترٲوُکھ ملبہٕ ترٛووُکھ یا واریاہ حساب ترٛووُکھ زہر لرووُکھ یوٚتانۍ گاڈٕ مۄیہِ تہٕ بیٚیہِ ترٛووُکھ یہِ واٹر سپلاے منٛز یہِ کھسان چھُ اورٕ تہِ تہِ ترٛووُکھ تہِ ملبہٕ شلبہٕ آب شاب گنٛدٕ آب ترٛووُکھ اتھ یوٚتانۍ گاڈٕ گٔے ختم تہٕ گٲڑۍ تہِ گٔے ختم توے نَدٕرۍ تہِ گٔے ختم. اچھا وۄنۍ زن ونو تۄہہِ یہِ وۄلرُک آب چھُ یہِ چیٚیِو تُہۍ یہِ چھا چیوٚن لایق؟ نہ نہ یہِ چھِنہٕ چٮ۪وٲنی نہ یہِ چھِنہٕ چٮ۪وٲنی اتھ چھُنہ یہِ چھُنہ خراب کران اتھ چھُ مُشُک یِوان یہِ تباہ کرِ کرِ تباہ وُچھ چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ یتھ منٛز کٲشِر پٲٹھۍ ناگن ہُنٛد یِم ناگ تل زٔمیٖن تل چھِ پکان تِمن تل چھُنہ ناگ آب سُے چھُ چٮ۪وان انسان یہِ چیٚیہِ آب تہٕ گاڈٕ کتہِ چٮ۪ن کِہینۍ تہٕ تُہُنٛد ونُن چھُ اتھ رلیو آبس سۭتۍ زہر ضروٗری حظ تہٕ آب بنیو زہر حظ یِم تہِ زُو زٲژ اتھ منٛز آسہٕ تِمو مۄیہِ اتھ یُس زُرِ منٛز چھُو تُہۍ روزان اتہِ کۭژاہ آبٲدیہ چھُ؟ لگ بگ حظ چھِ اتہِ 2 ہتھ چوٗلہٕ 2 ہتھ چوٗلہٕ
तुहद रोजगार वसीला क्या सोन रोजगार हो दरियाव ये वलुर वोल जमीन वमीन कहें ये वोल ये अत बन है गाड़ खार गाड़ 4 तो गाड़ 3 पे तजारत करान तजारत पे वो जान दितुक मन वो क्या कर वो नेरान मगर वो कर मजूर मश गे बेकिस ग मजूर खुश की अच्छा दरिया मकलियाव अच्छा दरिया मत आए गाड़े बच बच पढ़ा था मे बच पड़ा अत पड़ा वारियान बच अच्छा पढ़ा तो गुजारा किस पे गसा गुजारो ज्यादा गसा बनान गाड़ बनान गाड़ बनान नदर अत गसा गुजार सुबह गाड़ी वो कत बन गुजार वो क्या तुम यसान सरकार वन अगर ये सरकार शेर संभाले अगर सह बोट अगर सह करे ये तो आपस करान दरिया फिल्डरी अत चलान गंदगी बंद कर गंदगी बंद अत फिल्डर कर मखे गाड़ गसान ताज ये गंदगी गस अत मज कहें शहर वास ये सोनर वही वास बिल्कुल वास ये गाँव मज वास सह वात वर्ल्डस मज सह वात अत गंदगी गम वातान प्लास्टिक मर्द वात तम वात चे बसान वलुर भरन आमुत अमिक सनर अत क्या अत आमुत भरन कोता सनर शुमार अत लगभग 40 फुट सनर ज्यादा 40 ज्यादा वनस कोता वनस वनस लगभग 50 फुट बस बस भरन भरन अगर वो सरकार करे सफाई करे अगर सरकार करे वो तो करे मोतिन दपान बस दिम बंड वोल बड़राव अत ग सनर अगर सह कर अगर तम कर तेल ग वोल सनर तेल ग सनर तम तट वीर क्या कड़न जाय कहें पे गई मन चौपाई मन खे कथ तुहद रोजगार तो चले सोन रोजगार चल ये टूरिस्ट एरिया बने ना सया यहाँ सयाह रोड रोडस क्या यह बस ये वात कह वात कस ठेकेदार अत निब्रम ठेकेदार निब्रम यी कर हमेशा यी कर क्या और इन गसन जरिया वो तम बिल कर बराबर बिल वाज तमन वोत बैंकस बिल सह कर तैयार बस लगस मजूर 5-6 सह निकल बे कत बस कड़क बिल खेक प्रसनस कहीं जुटे हिसाबात वो अत अवकाफ जमात अगर तोड़ तमन वन अच्छा मे वन गुमुत मलबह जमा वलरस गुमुत सिलिट वन सिलेट अत गई सफाई 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 यु मलबह गो जमा गो खोत थजर वो क्या दाज क्या दपक दी सनर ये द्राज चुना क्या अच्छा ये द्राज मगर ये द्राजा कहें अमल अमल मूद ओत नफर अच्छा क्या खबर तमिस क्या दल पे बदल ड्राइवर अम खोल ओत यपर वन सैर गया कम अज कम लग बुट अच्छा अच्छा वो कोता काल गो अत द्रजस बंद अत गो जुमा जुमा 2 हफ्ता हफ्ता गया बंद वो काम करानी ना वो अगर ये करे काम तो तेल गसे तेल गसे ठीक अच्छा वो वन सच में डर सभा वो क्या चोन मैसेज सरकारस बस खाली अस वोलर कर ठीक सफाई बे रोड कर ठीक बस मे कह अत गोस सह ठेकेदार पना ना अड़ तम सन तम कर सह चलान कह ये कचा बिल कह जान तम कड़ हार बस खेवान तम खेवान हार कत गम ठेकेदार मेटो शेटो तम थे बुत मेट तम खे आई ठेकेदार खे आई मकल आई ये थोक कहें खोल दर बदर अस बनान गाड़ अस बनान गाड़ अस बनान नदर अत ग गुजार सुबह गाड़ी वो कत बन गुजार मेरा नाम गुलाम हसन भट्ट है आप रहते हैं बिल्कुल सर तो ये बांग्लादेश किसने बोला इसको किसने इसका नाम रखा है जो अगर जुर्म में जिसको बोलते हैं तो बांग्लादेश में बिल्कुल सर जो हमारे बुजुर्ग है मैं भी उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ जब इसका नाम पड़ा है सर बांग्लादेश क्यों कोई वजह तो होगी जो हमारे बुजुर्ग है वो इसका वजह ये बता रहा है जब 71 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ है पाकिस्तान से तो उसी टाइम हमारा वो जो जुर्म गांव है उस टाइम छोटा सा गांव था
तो वहाँ पे आग नमूदार हुआ है, कई सारे घर जल गए उस टाइम पे, उसके बाद में ही। तो उसके बाद कुछ घर इस साइड में थोड़ा शिफ्ट हो गया, जो लैंड खाली था तो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर उस टाइम जो यहाँ पे जो उस टाइम मतलब पता नहीं मिनिस्टर होगा उस टाइम पे कौन था, वो आके यहाँ पे उनको रिलीफ विलीफ किया। उस टाइम पे इसको नाम बांग्लादेश पड़ा था। अच्छा अच्छा, मिनिस्टर ने इसको बांग्लादेश रखा है। जो उस टाइम पे था 1972 की बात है ये। 71 में आज़ाद हो गया बांग्लादेश, तो 72 में यही इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। बिल्कुल सर, तब से इसको बांग्लादेश बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। बात साहब, अभी कितनी उम्र हो गया आपको? मेरा सर 41 है सर। 41 सर। आपकी उम्र है। बिल्कुल सर। तो आप यहीं वलूर के पड़ोसी हैं? बिल्कुल सर, किनारे पे हैं। आपने यहीं पे जन्म लिया? आपने वलूर को 40 साल से आप वलूर को देखते आए हैं सर। तो आप को लगता है आप आज 31 साल के हैं या 40 साल के हैं, कोई इसमें चेंज आ गई है कि या वलूर वैसा का वैसा ही जैसे पहले आपने देखा था बचपन में 5 साल जब थे आप, 10 साल के जब थे आप, तो वैसा का वैसा ही है कि कोई चेंज आ गई है इसमें? 10 साल से पहले मैं बताऊंगा, वलूर का पानी इतना मीठा होता था और इतना साफ पानी होता था, अगर मतलब जैसे शीशे में कुछ दिखाई देता वैसा शीशे की तरह ही इसका पानी था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इसकी तरफ पहले तवज्जो नहीं दिया गया। आज तक ये इस हाल में मतलब पहुंचा है, बुरे हाल में, समझो ये कुछ आखिरी सांसें ले रहा है। मेरे ख्याल से इसकी तरफ मतलब अच्छी तरह तवज्जो नहीं दिया गया, या तो बदकिस्मती की वजह से इसकी तरफ नजर नहीं पड़ी, मुझे ये लग रहा है। तो सरकार इतना दावा कर रही है, इतने करोड़ रुपए वलूर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो वलूर पे काम कर रही है। कोई कहता है इसको सिलेटिंग कर रहे हैं, ड्रेजिंग कर रहे हैं, इसका पानी साफ कर रहे हैं, इसका घास फूस है वो सफा से इसकी सफाई कर रहे हैं। कोई कहता है जो वहाँ से गंदा पानी आ रहा है लोकलिटी से या श्रीनगर से या सोपोर से, उसको अब आने नहीं दिया जा रहा है। या पीएचई के जो यहाँ पे स्कीम फिल्ट्रेशन का प्लांट बना है उसमें वो ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, तो जितना सारा वो मलबा ब्लीचिंग पाउडर का लास्ट में रहता तो वो इसी वलूर में जाता है। फिर तो ये वलूर का जो परिवर्तन है, माहौल है, इसमें मछलियाँ थी, इसमें सिंगाड़े थे, इसमें बाकी जानदार थे, इसमें नदरू था। तो क्या वलूर वो दिखता है प्रोडक्शन के लिहाज से, पानी के लिहाज से, एटमॉस्फेयर के लिहाज से, क्या क्या दिखता है आपको? सबसे पहले मैं सर आपकी ये बात मैं बिल्कुल दुरुस्त समझ रहा हूँ। मैं सबसे पहले जो इसके इर्द गिर्द के लोग या जो हमारे यहाँ के लोग, मतलब चाहे श्रीनगर के जो भी, मतलब चाहे जहलम के बैंक पे रहते हैं, चाहे वलूर के बैंक पे रहता है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट से ज्यादा उन्हीं का दोष। हमारा रोजी रोटी इसी वलूर में है, चाहे फिशरमैन हो, चाहे सिंगाड़ी वाले हैं, जितने भी, मुझे लगता है ये बहुत एक मतलब जरिया है रोजगार का, खासकर जो इसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं उनका बहुत एक बड़ा जरिया था ये। लेकिन जो लोग हैं वो जो घरों में कूड़ा कचरा जो भी निकलता है वो वलूर में ही छोड़ता है। अगर कोई जाएंगे, मतलब चाहे टूरिस्ट कोई कहीं भी जाता, चाहे पहाड़ों पे जाएंगे चाहे कहीं पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ मतलब प्लास्टिक छोड़ता है, जब बारिश पड़ता है वो सारे इसमें आता है। गवर्नमेंट को सबसे पहले वही एक कदम उठाना चाहिए, जो इसमें वेस्टेज आता है, गंदगी आता है, वो उसके ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए, वो रुकना चाहिए, चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे ब्लॉक का हो, जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व हो। मेरे ख्याल से सबसे पहले एक वही सेटअप उठाना चाहिए, इसमें जितनी भी गंदगी हो वो रुकना चाहिए, उसके ऊपर एक रोक लगना चाहिए। रही बात जो हमारी रोजगार था, इसमें मेरे ख्याल से बहुत ही अभी इसमें कम, जैसे पहले मैं भी एक फिशरमैन का बेटा हूँ, मैं भी एक फिशिंग करता था, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं भी इसी से पैदा हुआ, इसी का रोटी मैं खाता हूँ। तो जब पहले मिलता था समझो 10 किलो, मेरे ख्याल से आज तक 3 किलो तक ये पहुंच गई। ये वलूर का जो मछली है 3 किलो से ज्यादा नहीं मिलता, 3 किलो 4 किलो बस ये मिलता है। मुश्किल से आज मतलब समझो पेड़ चलता है। इसमें जो आपने दुरुस्त फरमाया सर, तो इसमें मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बड़ी दावा किया है, लेकिन अभी इन्होंने 2 साल, मुझे लगता है 2 साल इन्होंने पहले उधर सदरकोटा साइड में, इसमें थोड़ा सिल्टेड एरिया था, वहाँ इन्होंने काम किया है वहाँ पे। लेकिन जो हमारे इस चाहे सोपोर से बांडीपोरा तक इसकी तरफ अभी मतलब अभी
इन्होंने बोला शुरुआत किया है, लेकिन अभी मतलब जैसे होना चाहिए अभी मतलब इन्होंने एक भी इधर एक मशीन लाई थी, लेकिन मुझे लगता है और लाने की ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द ये काम हो जाएंगे। अच्छा गुलाम हसन साहब, 4 डिपार्टमेंट या 5 डिपार्टमेंट वॉलर पे काम कर रहे हैं। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सर, फिशरीज डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सर, वॉलर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सर, वॉलर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और भी है कुछ डिपार्टमेंट जो इंटरनेशनली इसकी एडिंग करते हैं और इस पे काम करना चाहते हैं या कुछ एडिंग हुई है इंटरनेशनली। तो इन 5 जो डिपार्टमेंट है या 4 डिपार्टमेंट है, इनकी क्या जिम्मेदारी है? देखो सर, इसका जो वॉलर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वॉलर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी, वो तो अभी नई बन गई। मुझे लगता है 2-3 सालों में वही थोड़ा इधर दौड़ धूप कर रहा है, जैसे बाकी डिपार्टमेंट है। इसमें कई रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो बड़ा डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। तो फिशरीज डिपार्टमेंट है, बड़ा रोल है उसका। और कुछ डिपार्टमेंट है ऐसा, मुझे लगता है उन्होंने आज तक इसके तरफ कोई मतलब खास ठोस कदम नहीं उठाया। चाहे सिंगाड़ी का इसका वो भी खत्म हो गया, वो एक बड़ा जरिया था लोगों का, वो भी खत्म हो गया। चाहे जो फिशरीज डिपार्टमेंट, मुझे लगता है उन्होंने कोई अच्छा रोल नहीं निभाया इसमें, ताकि लोगों को लगे नहीं मतलब इनसे कोई फायदा हुआ है हमसे। पिछले 4 महीना जब ब्रीडिंग होता है मछलियों का, मई, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना होता है मछलियों का ब्रीडिंग का। उस टाइम पे हमने इनको कई बार गुजारिश की है, इसमें उस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन मुझे लगता है इसमें फेलर है फिशरीज डिपार्टमेंट। इन्होंने एक स्कीम निकाली थी, जो माहीगीर है इनको दे देंगे 3-3 हज़ार रुपये, लेकिन एक ही साल में वो 3-3 हज़ार रुपये दिया, उसके बाद वो स्कीम फिर बंद किया है। तो मुझे लगता है इसमें इतना अच्छा रोल ये नहीं निभा रहा है। मेरी गुजारिश है उनसे अच्छा रोल निभाना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि वो उसी का तनख्वाह लेता है, चाहे उनका बड़े साहब हो चाहे छोटा एक गार्ड हो, वो इसी वॉलर का या जहां मछली हो उन्हीं चीजों का पैसा ले रहा है वो। लेकिन उनको एक बड़ा जिम्मेदारी बनता है, अगर हम खुदगर्ज लोग हैं इसमें कुछ गलत काम कर रहा है, उनका एक बड़ा जिम्मेदारी है इसमें अपना रोल निभाने का। मेरे ख्याल से वो अच्छी तरह अपना रोल नहीं निभा रहे। अच्छा देखिए गुलाम हसन साहब, जितने डिपार्टमेंट है सरकार उनको तनख्वाह दे रही है। बिल्कुल सर, वो खजाने से निकल रही है, बिल्कुल पैसा सर, आपका हमारे ही हमारा है, है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर, वो मालिक नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। बिल्कुल जैसे कि मैं बताऊंगा यहाँ पे महकमा जंगलात का क्या रोल है, बिल्कुल, क्या रोल है उनका। अब देखिए इतने पौधे हैं, पेड़ है, उगाए हैं, तो क्या रोल है उनका? उनको काटना है या डेवलप करना है, क्या करना है उनको? अच्छा इसी तरह फिशरीज डिपार्टमेंट जमीनी जमीन बिल्कुल कुछ नहीं होता, या वॉलर डेवलपमेंट अथॉरिटीज है या वॉलर कंजर्वेशन है, तो इतना वॉलर गंद से भर पड़ा है। तो आपका जो रोजी रोटी है या रोजगार है आपका, वो भी खत्म हो गया है। तो अड़ोस पड़ोस की कितनी सारी बस्ती है जो जिनका दारोमदार इसी वॉलर पे है, तो सब बेकार हो गए। अब पढ़ाई लिखाई भी इतने पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। ये सूरत हाल देखकर आप क्या कहना चाहिए? देखो सर, इन्होंने इको टूरिज्म की अभी इन्होंने जो हुक्मा है वो अभी सब उनका निभाना मतलब अपना जिम्मेदारी है, सफाई का इसका ख्याल रखना था। जो इसका बाउंड्रीज है वो का मतलब रिकवर करना है, जहाँ लोगों ने इसको खाया है वो रिकवर करना है, तो उनका वो रोल है। लेकिन सर उसमें जो मतलब अगर इको टूरिज्म का या टूरिज्म की बात करेंगे, इसमें दोनों पहल देखना है। सबसे पहले यहाँ के जो लोग हैं जिनके इसी वॉलर के ऊपर जो रोजी रोटी है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे सिंगाड़ी हो चाहे मछली हो चाहे नादरू, तो अभी इसमें खत्म ही हो गया है। मेरे ख्याल से पहले उसकी तरफ वो देखना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए टूरिज्म आए मतलब उससे मतलब अगर टूरिज्म से एक सिस्टम चलेगा वो भी ठीक है, हम उसको ये नहीं गलत हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी वो मुज़र असरात नहीं पड़ना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने सुना है, देखो सर यहाँ के जो फिशरमैन है टूरिज्म हो जाएंगे यहाँ, अगर एक साइड में उनको रोजगार के ऊपर असर पड़ जाएंगे, अगर टूरिज्म हो जाएंगे दूसरे साइड से उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन हाल ही में मैंने सुना है उसमें कुछ लोगों ने जो फिशरमैन नहीं है, जो नॉन फिशरमैन, चाहे श्रीनगर क्या हो चाहे मतलब यहाँ जो फिशरमैन नहीं है, जो फिशरमैन के बाहर है, उन्होंने भी शुरू किया है। बोला हमने सुनने में आया है, वो भी बोल रहा है हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे किश्ती रखेंगे, चाहे मोटर बोट्स रखेंगे, चाहे जेट स्की रखेंगे, चाहे कुछ रखेंगे। मेरे ख्याल से
उस टूरिज्म से हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब ऑलरेडी हम लोग गरीब है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर किश्ती बना सकता है, किश्ती से अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उतना सरमाया नहीं है, बाग नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पास यही सरमाया है। जो अगर कोई किसी को किश्ती बनाना है टूरिस्ट के लिए या कुछ बनाना है, तो उसको तो सबसे पहले उसको या तो लोन निकालना पड़ेगा उसको, या तो उसको अपना कुछ कर्जा लेना पड़ेगा, तभी वो किश्ती बना सकता है। 3 लाख का या 2 लाख का, 3 लाख से मेरे ख्याल से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई जो हमारे कास्ट से बाहर है, फिशरमैन के बाहर है, उसके पास चाहे कोई मुलाजिम हो, चाहे कोई मतलब बड़ा कोई दुकानदार हो या कोई भी इंडस्ट्री वाला हो, वो 50 लाख का भी वोट ला सकता है जब वहाँ बड़े वोट आ जाएंगे। नहीं, जब बड़े बड़े वोट बैठेंगे इधर, तो यहाँ के लोग जो इसके इर्द गिर्द रहने वाले, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा गवर्नमेंट को ये सबसे पहले सोचना चाहिए, पहले प्रेफरेंस इन्हीं लोगों को देना चाहिए जो इसमें काम कर रहा है, जिनको एक साइड से अगर उनका रोजगार मुतासर हो जाएंगे, दूसरी साइड से अगर उनको रोजगार मिलेगा, मेरे ख्याल से वो ठीक है। ठीक है, चले, ये अच्छी मैसेज है कि आपका रोजगार ये मुतासर नहीं होना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका रोजगार, इसमें सरकार को चाहिए कि ध्यान देना चाहिए और आगे इसको बढ़ाना है। बिल्कुल सर। अच्छा, आप 2 बातें आपसे पूछेंगे। आप नदरू पहले देखा, यहाँ से वलर निकालते मैंने खुद भी निकाला है सर, मेरा बाप भी लाता था नदरू। बिल्कुल, मछली भी आप उसका भी काम कर रहे थे आप। अच्छा, मुझे ये बताइए, नदरू कैसे खत्म हो गया? नदरू सर 2014 में खत्म हो गया। उसका 2 कारण है सर। एक तो उस टाइम पे जब 2014 में सैलाब आ गया, उस टाइम नदरू कम था इधर, बहुत ही कम था। लेकिन जो इसमें गंदगी वंदगी होता है सर, वो जो जहाँ नदरू का एरिया होता है, वो थोड़ा हार्ड एरिया होता है। चाहे जंगेर साइड में देखेंगे आप, वहाँ भी नदरू होता था, या उधर भांडीपुरा वो केमा घाट वहाँ आलोसा से वहाँ भी नदरू होता था। जो ये कचरा, कूड़ा कचरा, ये जहाँ वो उनका वो उधर दलदल बन गया। अभी पहले वो उसका हार्ड जमीन था, एक्चुअली वो हार्ड जमीन में उग जाता था, अभी वो दलदल बन गए। चाहे आप जंगेर साइड में देखेंगे, चाहे आप भांडीपुरा साइड में देखेंगे, वहां पे भी दलदल हो गए। दलदल की वजह से या पोल्यूशन की वजह से उसका नदरू खत्म हो गया। अच्छा, अब उसकी काश्त की जा सकती है दोबारा? हाँ बिल्कुल, अगर चाहेंगे गवर्नमेंट, क्यों नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मछली का आप बताइए, मछली क्यों खत्म हो गई? मछली खत्म हो गया सर, इसमें भी एक समझो वो हमारी गलती है, गवर्नमेंट से ज्यादा हमारी ही गलती है, लोगों की गलती है। एक नेट जाल आता है जो फॉरेन से आता है, पता नहीं चाइनीज जाल उसको बोलता है, गिल नेट बोलता है उसको। कुछ लोगों ने यहाँ पे वो लगाया, पहले तो सब लोगों ने लगाया, जब कुछ नहीं बचा था इधर, उसके बाद हमने एक टीम बनाई थी, उसको खत्म किया है। उसके बाद अभी नालों में बिल्कुल वो चल रहा था, क्योंकि वलुर तभी मतलब जो ब्रीडिंग का मछली होता है वो देर तक वलुर में नहीं बैठता, वो जाता नालों में, चाहे जाहले में जाएंगे, चाहे मधुमती नालों में जाएंगे। जो ब्रीडिंग वाली मछली होता है, बड़े बड़े मछली, वो उसी में जाता है। उसमें वो नेट फिशिंग वो कंटिन्यू हो रहा है, उसकी वजह से वो जो बड़ी बड़ी मछली जो ब्रीडिंग करता है वो तो मर गई है। मेन कॉज वही है। तो दूसरा सीड जो उसमें होता है, गवर्नमेंट सीड अच्छी तरह इसमें नहीं डालता है। जिस टाइम ब्रीडिंग का जो मछली है उनको मार देता है, उस टाइम जो फिशरीज डिपार्टमेंट है अपना रोल नहीं निभा रहा है। उनको भी अच्छी तरह अपना रोल निभाना, मुझे लगता है अगर फिशरीज डिपार्टमेंट अपनी रोल अच्छी तरह निभाएंगे, मुझे लगता है मछली का तादाद वापस आ जाएंगे। इसमें भी कई कारण है। दूसरा, मछली का जो कम हो गया है, जो हमारे जो बाग वाले हैं, जो अपने स्प्रे लगाता है, अपने बागों में स्प्रे लगाता है, या रेत वाले हैं, उन्होंने रेत निकालना शुरू कर दिया, उसकी वजह से जो मछली का पैदावार वो उससे भी कम हो गया सर। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, मछली की पैदावार कम हुई है, बिल्कुल सर। तो वाटर पोल्यूशन हुआ है, और सिलिट इस पे आ गया, देख रेख इसकी नहीं हो रही है। बिल्कुल सर। सरकार जो डिपार्टमेंट बनाए हैं जैसे फिशरीज का, बिल्कुल सर, अपना रोल नहीं निभा रहा है।